केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि क्लास 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, वाई डू एटम्स कंबाइन, कोसेस-लुईस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग, हाउ टू एटम्स कंबाइन, मोड्स ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, लुईस सिंबल रिप्रेजेंटिंग एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड्स, factors governing the formation of ionic bonds, general characteristics of ionic compounds, covalent bonds, Lewis Langmuir concept, Lewis representation of simple molecules and ions, the Lewis structure, formal charge on an atom in a molecule, limitation of octet rule, limitation of Lewis Langmuir concept of the covalent bonds, valence shell electron pair repulsion theory, Vesper theory, limitation of Vesper theory and advance of the valence bond theory and molecular orbital theory. Valence bond theory of covalent bonds, types of covalent bonds, sigma and pi bonds, some important bond characteristics, polar and non-polar covalent bonds, partial ionic character of covalent bonds, dipole moment, definition and units, dipole moments and molecular structure, partial covalent character of ionic bonds, Fajans rule, very important, Fajans rule, very important, characteristic of the covalent compounds, comparison between the property of the electrovalent and covalent compounds, hybridization, most important topic, directional property of bonds and geometry of or shape of the molecules. नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स, रेजोनेंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, salient feature of molecular orbital theory, formation of molecular orbitals, main characteristics of the bonding molecular orbitals, main characteristics of the anti-bonding molecular orbitals, condition for the combination of atomic orbitals to form the molecular orbitals, types of molecular orbitals, difference between sigma and pi molecular orbitals, energy level diagram of the molecular orbitals, relationship between electronic configuration and molecular behavior, electronic configuration of homonuclear diatomic molecules and molecular ions of the first and second row elements, comparison of valence bond and molecular orbital theory, hydrogen bonding, definition, condition for the hydrogen bonding, example of the hydrogen bonding, strength of the hydrogen bond, difference between hydrogen bond and the covalent bond, effect or consequence of the hydrogen bonding, types of hydrogen bonding, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये पूरा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है और चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसको अलग अलग वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को कंबाइन करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वीडियो हम लोगों का बनने जा रहा है इस चैप्टर में, जिसमें हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, मॉलिक्यूलर्स एंड केमिकल बॉन्ड्स। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जनरल मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन आपका H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन आपका O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और H2O ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। ए ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग together as one species and having characteristic property is called the molecules. When atom and atom combine to each other to also form a molecule, it may be diatomic, triatomic or mixture of atoms. There must be some force which hold these atoms together within the molecules. This force which hold the atoms together within a molecule is called the chemical bond. यहाँ पे H और H, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोई न कोई ऐसा बॉन्ड होगा जो इन सबको कंबाइन करके रखता है। यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्डिंग है जिसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में देख भी चुके हैं। O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में आपको डबल बॉन्डिंग होती है। डबल बॉन्डिंग मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के पास 1 2, ये दो आपके लोन पेयर बचे।
इसमें भी आपका ये लोन पेयर का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह से P4 मालिक्यूल, एसेट मालिक्यूल और वाटर मालिक्यूल। वाटर मालिक्यूल का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे H2O। H2O में ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन मीन्स 8O16 दैट इज 2 and 6 दैट इज 1s2 2s2 2p4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका ऑक्सीजन मालिक्यूल का, ऑक्सीजन एटम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्रम में हम लोग देखते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके कितने, टोटल 6 है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने, टोटल 6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होने के कारण ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और 2 बॉन्ड बनाने के कारण इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो H2O मालिक्यूल में 8O16 मीन्स 1s2 2s2 2p4 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिसमें ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम हो गया और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 and 6। सराउंडिंग सेंटर आपके हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। फर्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग शिफ्ट करते हैं, सेकंड हाइड्रोजन का हम लोग यहाँ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन मीन्स 1H1 दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, हियर हाइड्रोजन है सेकंड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का मिलकर के यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मीन्स दैट इज सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड दैट इज सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब एक लोन पेयर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे सेफ हो गया। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग दिखाएंगे OH और H और यहाँ पे एक लोन पेयर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे ऑर्बिटल डायग्राम में। सेकंड लोन पेयर आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो देखा गया है H और H के बीच में जो बॉन्ड एंगल आपका कितना है 104.5 डिग्री समथिंग। मीन्स रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर इज मैक्सिमम फॉर दिस बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्टेड फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट टू 104.5 degree due to repulsion order. We also note that the repulsion order that is lone pair repulsion order is maximum, then lone pair and bond pair, lone pair and bond pair, after this bond pair and bond pair, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं LP इज मोर देन LP देन BP। ये आपका रिपल्सन का ऑर्डर होगा, रिपल्सन ऑर्डर। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिपल्सन ऑर्डर सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे मिलता है, लोन पेयर में, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अमोनिया के स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अमोनिया दैट इज NH3 मालिक्यूल, NH3 इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। नाइट्रोजन दैट इज योर सेंट्रल एटम 7 and 14 मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5 दैट इज 1s2 2s2 and 2p3. This is the electronic configuration of the nitrogen atom. Nitrogen directly linked with the 3 hydrogen atom. Here nitrogen outermost shell has the 5 electron valence electron. Nitrogen makes 3 bonds for completing their octet. For this we have to find this structure NH, first hydrogen, second hydrogen, third hydrogen. This is the bonding electron of hydrogen, this is the bonding electron of nitrogen, this is bonding electron of nitrogen, this is bonding electron of hydrogen, this is bonding electron of nitrogen, this is bonding electron of hydrogen. Since nitrogens have 3 electron also engage with the hydrogen atom and hydrogen also forms here duplet रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका स्टेबल है, सेकंड हाइड्रोजन भी आपका स्टेबल जोन में, थर्ड हाइड्रोजन भी आपका स्टेबल जोन में। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका बचा हुआ है।
इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के नाते इसकी बॉन्डिंग को हम लोग इस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। एक पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। अमोनिया है पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स आपके कितने हो गए? 3। सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू 3, लोन पेयर इक्वल टू 1, 1 लोन पेयर है। टोटल इक्वल टू 4, 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडेशन के रूल में हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन that is mixing of an orbital which have the same energy level, mixing of an orbital which have same energy level, mixing of an orbital which have the same energy level are known as the hybridization। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रूल है, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 2, देन हाइब्रिडेशन विल बी sp। सेकेंड रूल कहता है, फर्स्ट रूल, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 3, देन हाइब्रिडेशन विल बी sp2। थर्ड रूल कहता है, इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इक्वल टू 4, देन हाइब्रिडेशन विल बी sp3, एंड इफ इट इज इक्वल टू 5, देन हाइब्रिडेशन विल बी sp3d। इफ इट इज इक्वल टू 6, then it will be sp3d2, and if it will be 7, then hybridization will be sp3d3। This is the most important role for the calculating the hybridization of any molecules or compounds, and this is very helpful for us to how to find the hybridization of any molecule। First of all, we have to check the how to this rule is applied for the different types of the molecules। We have to see first of all CH4 molecule, that is methane, इसको हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। हियर कार्बन इज योर सेंट्रल एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s12, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका टोटल 4 होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। फॉर दिस carbon makes 4 bonds, that is covalent bonds, because it has the 4 valence electron। For completing their octet, it forms the 4 covalent bond with the hydrogen and give the following structure। स्ट्रक्चर के सी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कार्बन हैव द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट हाइड्रोजन, second hydrogen, third hydrogen, and this is your last 4th hydrogen। Hydrogen have also 1 electron in their valence shell, 1 and 1। Here covalent bond, formation of covalent bond takes place। Covalent bond is formed between the equal sharing of electron between 2 atoms, equal sharing of electron between 2 atoms to form a covalent bond। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कार्बन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का दिस इलेक्ट्रॉन व्हेन मिक्स टुगेदर तो फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड में हम लोग देखते हैं कार्बन के दिस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का दिस इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर के सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन इलेक्ट्रॉन मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अनदर कोवेलेंट बॉन्ड। हियर हाइड्रोजन एंड कार्बन आल्सो मिक्स दिस टाइप ऑफ द बॉन्ड एंड दिस आल्सो गिव द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। Here covalent bonds, that is single bond, it is also known as the sigma bond, and sigma bond formation takes place generally when head to head overlapping of an orbital takes place। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी
कि कैसे सिग्मा बॉन्ड का फार्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फार्मेशन होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है इसी को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। दैट इज़ 1 सिग्मा बॉन्ड, 2nd सिग्मा बॉन्ड, 3rd सिग्मा बॉन्ड, 4th सिग्मा बॉन्ड। दैट इज टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4 एंड लोन पेयर इक्वल टू 0, क्योंकि कार्बन के पास कोई बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके इंगेज है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, लोन पेयर इसके पास नहीं है, तो टोटल लोन पेयर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग टोटल देखेंगे, मीन्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल इक्वल टू 4। अब 4 मीन्स क्या होगा, हाइब्रिडेशन आपका sp3 रूल कहता है। देखिए यस में 1 ऑर्बिटल होते हैं, यस हैव 1 ऑर्बिटल दैट इज सिंगल। p मीन्स 3 ऑर्बिटल, px, py एंड pz। d है 5 ऑर्बिटल्स दैट इज dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। when 2 orbitals combine such as s and p, when 2 orbitals are combined then it gives s and p, that is sp hybridized, when spp, that is 3 orbitals here, spp means 3 orbitals, 3, then hybridization will be spp means sp2, hybridization will be sp2 hybridized. When spp, this s1s and 3p orbitals combine to each other to form total orbitals means 4, that is 1s and 3p, hybridization will be sp3. when 1s, 3p and 1d also combine to each other means 1, 2, 3, 4, 5, then total orbitals will be 5 and hybridization will be spp and d, that is sp3d. when this d orbitals also combine to each other, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, total orbitals you have to find the 6, then hybridization will be sp3d2. when this orbitals is also combined to each other, then 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, that is 1s, 3p orbitals and 3d orbital, that is total 7 orbitals are combined to each other to form sp3d3 hybridations. This is the most important, very important rule for calculating the hybridization of any molecule, and this rule can be applied to any molecules or any complex compound which are suitable for the calculating how the hybridization. very simplest rule है। डिटेल रूल में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के मेथड से, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी सीखेंगे, और डिफरेंट टाइप के बैलेंस बाउंड थ्योरी, बेस्फेट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक टॉपिक को हम लोग डिटेल दे करके नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।